everyone, welcome back to our channel Osino Dentistry. Today we are going to discuss in detail about the vesicobullous lesion. This is one of the most important topic from your oral pathology point of view and from your oral medicine point of view. In the third year and in the final year dentistry and even in the MBBS dermat examination, this is a very important topic. So let's come to our topic, what its meaning is. Before going in detail with our topic, please do subscribe to our channel. If you have not subscribed to our channel, please press the bell icon so that you can get all the important updates from our channel. Now coming to our topic, before entering into the detail of this topic, we will need to learn some important terminology regarding the topic. Okay, so try to understand what is vesicobullous lesion. In the terminology of the vesicobullous lesion, you should know and you should divide the term in two ways, that is vesicobullous and the lesion. You all know the meaning of lesion, what is the lesion is and what does it means. But you should know about the vesico. Vesico has come from a word vesicle. I will discuss with you in few seconds what is vesicle, what is bulla, and the bullous has come from the word that is called bulla. These two terms are having same meaning, but they differ in the size. You can correlate it with the bulla. Bulla means bull, anything that is bigger in size. So now coming to the terminology of the vesicobullous lesion, we should know first that vesicle. What is vesicle? Vesicle is an elevated lesion that contains the fluid. There are many types of fluid, that is turbid fluid, clear fluid, crystal containing fluid. So this is an elevated lesion. It will contain some fluid, that will be clear fluid. But a very important point is that the size. The size of the vesicle should be less than 1 centimeter in diameter. Means the lesion should have the size diameter less than 1 centimeter. It is a very important point. See, I will discuss with you in the detail like pemphigus, pemphigoid, herpes labialis, erythema multiforme, lupus erythematosus, psoriasis, oral lichen planus. So in this lesion you will come to know there are different size of the lesion. Initially any ulcer, think of aphthous ulcer. I have discussed with you people in the our channel, and in the aphthous ulcer you all know that the lesion is a small lesion. Small ulcers are formed. But there is some lesion in which the bulla is formed, like pemphigoid, bulla is formed. Okay? So vesicle is an elevated lesion that contains crystal clear fluid, that is containing clear fluid, and the size is less than 1 centimeter in diameter. The example will be pemphigus, pemphigoid, herpes labialis. Second, bulla. Bulla is an elevated lesion. It is also an elevated lesion that contains the fluid, but the size is more than 1 centimeter in diameter. यहाँ पे fluid जो है वो छूट गया है, तो it should contain fluid. Okay? तो ये जो बुल्ला होता है ये फ्लूइड कंटेन करके रखता है अपने साथ, बट ये फ्लूइड का जो डायमीटर होता है, ये जो साइज होता है, that will be bigger in size. ब्लिस्टर की अगर बात करते हैं, आप डायग्राम में देखो, अब दोनों को मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं कि वेसिकल को आप देखो तो वेसिकल छोटे साइज का होता है, लेकिन जो बुल्ला होता है वो लार्जर साइज का होता है. छोटे छोटे वेसिकल आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं इंटरनली ड्यू टू द लॉस ऑफ एपिथेलियल सेल्स इंटरनली. सो जो सेल टू सेल जो एक ज्वाइंट है वो ब्रेक हो चुका है. अब ये दो छोटे छोटे वेसिकल थे वो दोनों आपस में ज्वाइन हो गए और एक बड़ा बुल्ला का फॉर्मेशन कर दिया. इसका एग्जांपल जाएगा पेम्फिगस. अब आप कहोगे सर पेम्फिगस आप बोल रहे हो कि वेसिकल के फॉर्म में भी होता है, कभी आप बोल रहे हो कि सर बुल्ला के फॉर्म में होता है, कैसे? देखो, जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, मैंने पेम्फिगस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बाकी आप डिटेल्स वहां पे समझ लेना. यहां पे मैं बेसिक डिटेल्स बस ले रहा हूं कि जो पेम्फिगस होता है
इनिशियली कोई भी लीजन क्या होता है, छोटा सा अल्सर होता है। जब अंदर में पेम्फिगस के केस में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है सेल्स का, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लगता है हमारे एपिथेलियल सेल्स के अगेंस्ट। उसकी वजह से क्या होता है कि स्प्लिट लाइक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, अंदर में ही सेल टू सेल का एडिशन ब्रेक हो जाता है। अब सेल टू सेल का एडिशन ब्रेक हो चुका है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे वेसिकल्स थे, वो छोटे छोटे वेसिकल्स आपस में ज्वाइन हो गए, 1 सेंटीमीटर से बड़ा साइज हो गया, और इसीलिए हम उसको बुल्ला कहते हैं। तो मतलब पेम्फिगस जब बाद में चल करके होता क्या है कि बुल्ला में कन्वर्ट हो जाता है, जो वेसिकल्स होते हैं वो बाद में बुल्ला में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द केस ऑफ पेम्फिगस। अब आता है प्लाक। तो आपका 2 क्लियर हो गया, वेसिकल और बुल्ला। अब आता है प्लाक। प्लाक क्या होता है? देखो 2 तरह के प्लाक की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। एक होता है जो ओरल कैविटी में प्लाक एक्यूमुलेट होता, वो बात अलग है। ये दूसरा है प्लाक। प्लाक एक सॉलिड रेज्ड लीजन होता है। बेसिकल और बुल्ला क्या था? फ्लूइड लाइक होता है, बट यहां क्या सॉलिड सब्सटेंस है, हार्ड है, मतलब सॉलिड रेज्ड लीजन है। ओके, और इसका साइज डायमीटर मोर देन 1 सेंटीमीटर है। मतलब एक ऐसा लीजन जो कि सॉलिड है, थोड़ा एलिवेटेड भी है, और उसका साइज जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है इन द डायमीटर, तो हम उसको बोल देंगे कि यह हमारा प्लाक है। एग्जांपल जाएगा ओरल लाइकन प्लानस। ओरल लाइकन प्लानस का बहुत सारा टाइप्स होता है, आपसे डिस्कस करूंगा अभी मैं कुछ लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, कि ओरल लाइकन प्लानस में आप देखते हो कि वहां पे एटिपिकल टाइप ऑफ ओरल लाइकन प्लानस होता है, टिपिकल टाइप ऑफ लाइकन प्लानस होता है, बुल्ला फॉर्म ऑफ लाइकन प्लानस होता है, और भी बहुत सारे लाइकन प्लानस होते हैं। लेकिन मेन जो है कि यहां पे हमारा प्लाक लाइक लाइकन प्लानस भी देखने को मिलता है। ये हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं, अभी ये 2 छोड़ दो, नोड्यूल और मैक्यूल। अब आ जाओ पैप्यूल। सेम लाइक प्लाक, पैप्यूल भी होता है सॉलिड रेज्ड लीजन, लेकिन साइज का डायमीटर छोटा होता है पैप्यूल्स में। पैप्यूल्स का साइज डायमीटर छोटा होता है, लगभग वो 1 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर से छोटे होते हैं पैप्यूल्स, और ये स्किन में होते हैं हमारे प्रेजेंट डर्मिस में। एग्जांपल की बात करते हैं, एरिथमा मल्टीफॉर्मी, मीजल्स, रूबेला, लुपस एरिथमेटस। एरिथमा मल्टीफॉर्मी का एक शॉर्ट देता हूं कि एरिथमा मल्टीफॉर्मी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अ गनशॉट लीजन, इसका दूसरा नाम है। डिस्क्राइब सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एरिथमा मल्टीफॉर्मी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आंसर होगा इसका। गनशॉट लीजन एरिथमा मल्टीफॉर्मी, ट्रिगर लीजन एरिथमा मल्टीफॉर्मी, ये सब कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत यूज किया जाएगा आपके वाइवा में, और ये आपको याद होना चाहिए। और ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए सारी टर्मिनोलॉजी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लुपस एरिथमेटस, डिस्क्राइब लुपस एरिथमेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट नोट्स आता है। एरिथमा मल्टीफॉर्मी पे शॉर्ट नोट्स आ गया है अभी बहुत सारे टाइम डिफरेंट एग्जामिनेशन में। नोड्यूल, अब आ जाओ नोड्यूल पे। तो आपसे डिस्कस हो गया वेसिकल, बुल्ला, पैप्यूल, प्लाक। अब आ जाओ नोड्यूल। नोड्यूलर मास, किसी भी तरीका का नोड्यूल मतलब गांठ जैसा बन जाना। नोड्स, आपने सीखा ना नोड्स, जब 12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं, 11th में बायोलॉजी पढ़ते हो आप, तो प्लांट बॉटनी में बताया कि नोड्स होते हैं, किसी भी चीज का गांठ बन जाना। मतलब देखो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसके बीच में एक गांठ जैसा बन गया, इट इज नोड्स। सो these lesions are present deep in the dermis, okay, and epidermis can move easily over them। मतलब ये ऐसे लीजन होते हैं जो डर्मिस, अब स्किन का लेयर होता है एपिडर्मिस, डर्मिस, और नीचे चले जाओ तो एपिडर्मिस में ये नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, और उसके ऊपर से हमारा इजिली मूव कर सकता है क्या, एपिडर्मिस। बिल्कुल सही है। अब मान लो कि आपके हाथ में एक छोटा सा गांठ जैसा बना, उसके ऊपर में डर्मिस है प्रेजेंट, वो डर्मिस तो इजिली मूव कर सकता है, इधर दबा दो, इधर दबा दो, इधर दबा दो, डर्मिस तो इजिली रहेगा उस पे। नोड्यूल नीचे प्रेजेंट होगा, डर्मिस में प्रेजेंट होगा, यही बात है यहां पे। एग्जांपल जाएगा मोलस्कम कॉन्टेजिस। मैक्यूल, मैक्यूल इज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड, अब वर्ड पे ध्यान देना, वेल सर्कमस्क्राइब्ड फ्लैट लीजन। आई एम सेइंग फ्लैट लीजन। तो मैक्यूल एक फ्लैट लीजन होता है दैट आर नोटिसेबल। अब आप बोलोगे सर फ्लैट लीजन है, आप कैसे बता सकते हो कि ये मैक्यूल है? बिल्कुल, उसमें कुछ कलर चेंजेस होंगे बेटा, कुछ कलर चेंज आता है, और उसमें जो कलर चेंज आएगा डेट विल बी रेड और पिगमेंटेड लीजन होगा।
मतलब रेड कलर का होगा। क्यों? क्योंकि अंदर में कुछ वेस्कुलर मालफॉर्मेशन हुआ है। पिगमेंटेड क्यों है? क्योंकि वहां पे मेलानिन का डिपोजिशन हो रखा होगा, हीमोसिड्रिन का डिपोजिशन हो रखा होगा, इसलिए पिगमेंट्स आ रहे हैं। हीमोसिड्रिन का डिपोजिशन तो ब्लूइश पिगमेंट देखने को मिलेगा, मेलानिन का डिपोजिशन है, ब्राउनिश देखने को मिलेगा। तो ये मैक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है मैक्यूल्स, और द लीजन्स आर नोटिसेबल बिकॉज ऑफ द चेंज इन कलर। पैप्यूल आपसे डिस्कस कर लिया हमने। परप्यूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। परप्यूरा भी एक फ्लैट लीजन है, बट परप्यूरा के साथ क्या कंडीशन है कि परप्यूरा इज अ फ्लैट लीजन, दे आर नॉट वेल सर्कमस्क्राइब्ड बट दे आर रेडिश टू पर्पल फ्लैट लीजन। ओके, दे कैन बी रेडिश, दे कैन बी पर्पल। अब ऐसा क्यों होता है? देखो यहां भी कुछ लीकेज हो रहा है, यहां पे ब्लड का लीकेज हो रहा है। जो ब्लड वेसल्स है उनका रप्चर हुआ है किसी भी रीजन से, किसी भी कॉज की वजह से एक रप्चर हुआ है ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल जब रप्चर होगा तो उसमें ब्लड है, वो लीक करेगा किसी एरिया में, और जब लीकेज होता है फ्रॉम द वेसल्स इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर में लीकेज हो गया तो वेल सर्कमस्क्राइब हो ही नहीं सकता, कहीं भी जा सकता है ना वो, तो वेल सर्कमस्क्राइब नहीं होगा। एग्जांपल उसका होगा दैट विल बी एग्जांपल लाइक एकामोसिस, टेक्की एक्सेट्रा। ये एग्जांपल भी बोल सकते हो, टाइप भी बोल सकते हो। अब इकाइमोसिस और टेक्की दो ऐसा टर्म है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। इकाइमोसिस इज अ टाइप ऑफ परप्यूरा, वर्ड पे फोकस करो। इकाइमोसिस इज अ टाइप ऑफ परप्यूरा विच हैज डायमीटर मोर देन 1 to 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब बड़े साइज के परप्यूरा को इकाइमोसिस कहते हैं। और टेक्की किसको कहते हैं? छोटे साइज के परप्यूरा को टेक्की कहते हैं। ओके, एक परप्यूरा के बारे में बहुत अच्छी चीज है कि ये ब्लैंच नहीं करेगा प्रेशर पे, मूवमेंट नहीं शो करेगा जब आप प्रेशर डालोगे इस पे। वेसिकल मूव करेगा, नोड्यूल मूव करेगा, इधर से उधर हाइड करेगा, मतलब आसपास के एरिया में हाइड करेगा, वो मूव करने की कोशिश करेगा। बुल्ला मूव करेगा क्योंकि उसमें फ्लूइड है ना बेटा। आप एक बैलून का एग्जांपल ले लो, बैलून के अंदर में क्या होता है कि आप जब पानी भरते हो तो क्या होता है, बैलून, छोटा सा बैलून लो, पूरा गुब्बारा फुलाना नहीं, उसको छोटा सा बैलून लो, पानी भर दो। अब उसको प्रेस करके देखो, ब्लैंच करेगा, इधर से उधर मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैंच ऑन प्रेशर। ब्लैंचिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लीजन होते हैं जो ब्लैंच करता है ऑन गिविंग प्रेशर। पेम्फिगस ब्लैंच करता है ऑन द गिविंग प्रेशर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द वेसिकोबुलस लीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद कर लेना। अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम का लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सबका ग्रुप में हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप वहां से डिस्कस कर सकते हो हमारे ग्रुप में। नोट्स आपको यहां से आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। उसके बाद एक चीज लिख लो कहीं पे भी, आपको जो इस टॉपिक में पढ़ना है वेसिकोबुलस लीजन में 3-4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे प्राइमरी हर्पिस लेबियालिस बहुत इंपॉर्टेंट है ओएमआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगर ओरल पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहते हो तो प्राइमरी हर्पिस लेबियालिस वहां भी इंपॉर्टेंट है, यहां भी इंपॉर्टेंट है, HSB1 से होता है वो मैं भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो हमारा, उसी पे आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ वेसिकोबुलस लीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है, अब थर्ड ईयर में ओरल पैथोलॉजी में आपका क्वेश्चन आता है जनरली पेम्फिगस, लॉन्ग नोट्स आता है, याद रखना इस बात पे। पेम्फिगॉइड, ओरल लाइकन प्लानस, इस पे तो लॉन्ग नोट्स आएगा। डिफाइन वेसिकोबुलस लीजन, क्लासिफाई वेसिकोबुलस लीजन एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पेम्फिगस या ओरल लाइकन प्लानस या फिर कुछ भी। उसके अलावा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है सोरियोसिस, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओरल लाइकन प्लानस, मैंने बता दिया। एरिथमा मल्टीफॉर्मी, इसका दूसरा नाम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के नाम से आ सकता है कभी कभी। एरिथमा मल्टीफॉर्मी मेजर को बोलते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लाइकन प्लानस, उसके बाद ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये कुछ एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन और प्राइमरी हर्पिस लेबियालिस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Please do like, share, and subscribe to our channel, Ocean of Dentistry, and please support us on Telegram, YouTube, and Instagram. Please follow us. And for any notes, you can contact me on our Telegram page, even on my WhatsApp group, and you can call
our team here anytime. The link has been given in the description. Thank you. That's all for today. Please do like, share, and subscribe to our channel.